हाय गाइस, वेलकम। मैं हूं अभिनव एंड मैं एक अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए सो लेट्स ऐड हिम। आप एक फ्रेंड है मेरे। जस्ट अ सेकंड। ओके, सो गेस्ट रिक्वेस्ट भेजो सर, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजो। अगर लाइव देख रहे हो तो आपको एक नीचे बटन दिख रहा होगा, उसको दबाना होगा। एक बार ज्वाइन करिए। गुड टू गो। कुछ लोगों को ऐड कर लेते हैं जब तक। शायद रिक्वेस्ट भेजी है, ऐड हूँ नहीं हूँ, बट मैं देखता हूँ अगर वो ऐड हो रहे हैं तो। लेट्स सी। ओके, few people are there. गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग ऑन स्मॉल लाइव सेशन फ्रॉम अभिनव। कैसे हैं आप? But good evening, sir. How are you? Cannot switch on the और camera because I'm in a different location as of now, so can't switch on the camera. So, how are you, sir? ओके, ऑल गुड सर। हाउ अबाउट यू? लॉन्ग टाइम, काफी दिन बाद बात हो रही है। Long time, sir. Long time. And thank you so much for bringing this live session on Facebook for this calibration. Lens calibration is an important topic, sir. Abhi people who are using this 200 500 lens, of course they require this session for sure. For sure. That's And why I quickly I joined. have I For have sure. one of the friends whom I'm waiting. I don't know if he's joining or not. I messaged him up. So let's see if I can share this live video. Just a second, sir. Yes. Okay, invite has been sent. We are waiting for him to join. So he will share his experience of about how he got the services from brands like Nikon, and what was his experience, and how lens calibration was done, especially in a place like Gurgaon in North India. Right, sir? So Right. tell me about yourself, sir. Do you know anything about lens calibration as of now? Not really, because I've recently bought this Nikon D500 and 200 Hmm. 500 mm lens, and Hmm. I've also got a 18 140 lens as well, right? Correct. And still, getting as I've recently bought it, so still getting used to the things, and Right. still to know much about lens calibration and other technical Right. factors. Absolutely. So the thing is that once I'm talking about this lens calibration issue, I have been in touch with so many wildlifers out there. 90% of the people, they don't require this kind of, or they don't care. Maybe simple terms if I talk about. So you have not done any sort of lens calibration. I have not done any sort of lens calibration. Our images are still going good, right? So people who require lens calibration, this is a very, very important topic which needs to be discussed again and again. And let's see if I can add some people. The request is there. So lens calibration is an important element, sir. If it requires some sort of reducing the sharpness, and if you're looking for a quality picture, definitely you require the machine to be up to date. And of course, lens calibration is an important parameter. My question here is, welcome Jitendra ji, how are you? बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू। Harpreet ji is also there with us in the session. So अच्छा he was सर। Hello, sir. listening and I've added him. So he's looking at the live session. So he has switched off the camera basically. So बातचीत हो रही थी sir about lens calibration, right? So मैंने देखा था 200, लाइव देख। हाँ जी, तो 200 500 f5.6 आपके पास लेंस है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी सही बात। सही बात है। मेरे पास भी 200 500 f5.6 है। इनफैक्ट हरप्रीत जी भी सेम लेंस चला रहे हैं, 200 500 True, true, f5.6 के आसपास का, true, राइट? true. Yeah. ट्रू। सो जितना भी बर्डिंग कम्युनिटी है उसमें एक हॉट फेवरेट लेंस है सर 200 500, जो मैं सबको बोलता हूँ, आपको भी बोलता हूँ। सो कहानी ये जी। होती है सर कि 90% लोगों से जिनसे मेरी बातचीत होती है, 90% मैंने टर्म यूज किया, उससे भी ज्यादा का फिगर है इन टर्म्स ऑफ रेशियो।
सो मुझे हार्डली कोई बंदा मिला है जिसने कहा हो कि अभिनव मेरे को लेंस कैलिब्रेशन करना है या जरूरत है या करवाना है। तो अब मैं सुनना चाहूंगा सर एक आपका छोटा सा एक्सपीरियंस, हम सब सुनना चाहेंगे, वेट कर रहे थे तो कहा कि क्यों ना आपको वीडियो पे लाया जाए, कॉल पे लाया जाए, और क्या हुआ था, आपको कैसे लगा, लेंस कैलिब्रेशन क्यों चाहिए और क्या उसके रिजल्ट्स थे फाइनल। जी जी। पहले तो सबसे मतलब धन्यवाद जो है अभिनव जी का है, इसमें थैंक यू सर। योगदान जिसको कह लें या कुछ भी कह लें, एक टेक्निकल नॉलेज इम्पार्ट करने के लिए कह लें, जैसा भी कहें, मित्र के भाव से, स्वभाव से, अच्छी भावना की तरह मैंने इनसे शेयर करी थी कि मतलब एक शेयर करी थी जब मैंने 200-500 mm ये खरीदा था लेंस, तो सर। मैंने अभिनव जी से शेयर करी थी कि अभिनव जी मुझे ना एक प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैं स्विच लेंस यूज करता था पहले, तो मुझे 300 वो mm चीज, आपका था। हाँ, जो आउटपुट जो आ रही थी मेरे पास वो 200-500 में आ क्यों नहीं रही मेरे कैमरे के साथ। बिल्कुल सही। और ये मुझे ये अंदर से एक मतलब एक प्रश्न चिन्ह इसलिए लटक भी रहा था, क्योंकि मेरे कई मित्र हैं जो ये यूज कर रहे हैं 5600 बॉडी के साथ, D5600, तो उनकी आउटपुट देख के मैंने कभी कोई कमेंट नहीं करी ऐसा क्योंकि आपकी ऐसी क्यों फिगर आ रही है फलना ठेकना, लेकिन मुझे ये ना डाउट था, पर मेरे अंदर जो भावना थी कि भाई ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर अभिनव जी से मैंने शेयर करी ये बात, और अभिनव जी ने एक शब्द लिखा था लेंस कैलिब्रेशन, बड़ा टेक्निकल शब्द था, तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं इसको भी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने उनको मान लिया, बिल्कुल एकदम उनके पीछे चल दिए, बिल्कुल सही बात। मैंने गूगल पे जाके सर्च करी सारी कुछ, तो गूगल के ऊपर ना एक शब्द और मिली मुझे, पेयरिंग। पेयरिंग, यस, पेयरिंग ऑफ द फोकस, राइट। ऑटो फोकस जिसको पहले ऑटो फोकस कह लो, जो भी आप टेक्निकल भाषा में, उतना है नहीं टेक्निकल, पर ऑटो फोकस की जो पेयरिंग है ना वो 100% किसी कैमरे में बमुश्किल से होती है, कहीं कुछ प्रॉब्लम कैमरे में हो या लेंस में हो, मतलब 1 मिलीमीटर 0.25 मिलीमीटर ऐसा करके होता है कुछ। तो फिर मेरे दिमाग में एक ना जद्दोजहद चल गई, फिर निकॉन ने बात करी, निकॉन की जो है कस्टमर केयर में, उन्होंने मुझे सपोर्ट के ऊपर भेजा, तो वहां से बात करी, तो कोई एक जानकार बंदा वहीं से मिल गया बेचारा, तो उसने मुझे कहा कि ऐसा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये जरूरी चीजें हैं, यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप चंडीगढ़ जाके दिखाओ। मैं तो चंडीगढ़ से फिर संपर्क किया, तो कह रहे हैं कि जी हेड ऑफिस में जाओ। फिर संजोग से मेरा, हाँ, तो संजोग से टूर बन गया जी। एक संजोग की बातें देखो ऐसे ही बनती है, संजोग ऐसे बनते हैं, मैं ये बता रहा हूँ। यहाँ तो सर वहां एक छोटा सा 1 सेकंड के लिए आपको काटना चाहूंगा। जो मेरे निकॉन इंडिया के मित्र हैं जो देख रहे हैं वीडियो को, या जो फ्रेंड्स हैं वो आर वर्किंग इन निकॉन, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर कि अगर कुछ हम वाइल्ड लाइफर्स की मदद कर दो कि भैया हमारे लेंस चंडीगढ़ में कैलिब्रेट हो जाएं, रादर देन कि हमारा सारा कैमरा मशीन सब कुछ गुड़गांव जाता हो। छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग उन तक बात पहुंचा पाए, तो मैं डेफिनेटली वीडियो शेयर करके पहुंचाऊंगा अपने नेटवर्क में। सो आप बात बताइए सर, तो आपको गुड़गांव भेजना पड़ा? नहीं, ये बात अच्छी करी, जो गुड़गांव में ये प्रश्न रखा था आपका मैंने कि यदि चंडीगढ़ में क्यों नहीं हो सकता था, तो उन्होंने कहा कि यदि चंडीगढ़ वाले करते हैं, लेकिन जब आप दोगे इनको तो मेरे पास ही भेजेंगे। अच्छा, ओके। हाँ, तो वो कह रहे थे कि ये तो बात की चीजें हैं, उनकी अपनी जो है जो सेटअप है क्या है नहीं है सर्विस सेंटर की। तो फिर वहां जाके जो मुझे बड़ा टेक्निकल से बंदे से मिलाया गया, प्रॉब्लम क्या है आपकी, समझदारी क्या कैसी है आपकी, आप कितना जानकार हो, 3 चीजें बात रखी गई। मैंने कहा कि सारी चीजें स्पष्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि जी प्रॉब्लम की तो चेक किया उन्होंने सारा कुछ, और विदिन मैं कह लूँ 6-7 घंटे लगे होंगे, तब तक मैं अपना काम करता रहा उधर। तो 6-7 घंटे के बाद उन्होंने मुझे फोन किया कि आप आके चेक कर सकते हैं क्या आपके, हाँ नहीं 300 mm पे जो तस्वीर आपने खींची जमा करने से पहले और जमा करने के बाद 300 mm पे उसी स्पॉट पे क्या तस्वीर अच्छी आ रही है, एग्जैक्टली। आपको क्या
क्या अंतर दिख रहा है। हम्म। मैं आया फिर वापस, तो मैं अपना पर्सनल व्यू कर रहा हूँ कि मुझे अंतर दिख गया था। दिख गया आपको? जो भी 10% मेरी आंखें देख सकती थी वो 10%, ओके। क्योंकि इतने साल बर्डिंग में छोटी सी स्पॉट को खींचना, तो मैं उसको देख सकता था कि 10% और 5% का अंतर क्या है। तो मेरे अंदर ये भावना है, फिर मैंने अभिनव जी से शेयर किया कि अभिनव जी, एक कैलिब्रेशन भी एक चीज होती है जो आपने पहले दिन व्यक्त किया था, एक सचमुच की चीज है, एक टेक्नोलॉजी है। एग्जैक्टली। मशीन है, हाँ, रिक्वायरमेंट मेंटेनेंस मांगती है, कोई सा भी मशीन हो सर वो मांगता है मेंटेनेंस एंड रिक्वायरमेंट्स। सो कैमरे की जब बात करते हैं तो हैंडलिंग पे बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट है कि, हाँ एंड जी ऑफ सर। कोर्स आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ। मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में भी यही कहा था, इनफैक्ट आपसे भी यही बात हुई थी कि 90% जनता जिनको मैं जानता हूँ जो यूज कर रही है, उनमें से शायद ही मुझे किसी ने लेंस कैलिब्रेशन की बात करी हो, शायद, दैट्स अ डाउट। बट आपसे जब मेरी मुलाकात हुई तो मेरा डाउट वहीं पे गया कि सर एक तो फिल्टर हटा लो आपके लेंस के आगे, आपने कहा था शार्प इमेजेस नहीं आ रही, फिल्टर हटाने से क्या फर्क पड़ा था सर? फिल्टर हटाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था, इनफैक्ट नहीं पड़ा था। तो नहीं, मैं तो बिना फिल्टर के यूज कर रहा हूँ अभी भी। और जो मुझे ना, देखो, ऐसा कोई आम आदमी देखता है जिस चीज को, वो नहीं पकड़ पाएगा इस चीज को कि 10 और 5% का, क्योंकि 300 एमएम में जब खींच लेंस से खींच रहा था, तो अब मैं उसी को 500 एमएम पे 300 पे ही यदि खींच रहा हूँ, उसी लेंस को 300 पे भी खींच रहा हूँ, इधर भी 300 एमएम लेंस से खींच रहा हूँ, मेरी साथ में आज भी बरकरार है। आज मैं गया था, एक्चुअली इनफैक्ट आपको बता दूं, आज मैं टेस्ट के लिए गया था सेक्रेटरी, तो तकरीबन मैंने 100 से 200 तस्वीरें खींची होंगी, इनके बीच 150 150। और एक्चुअली इधर लाइट चली गई व्यक्ति कोई की, बात नहीं सर, आ जाएगी, वापस आ जाएगी। हाँ, आप देख रहे हैं, अभी कैमरे में देख पा रहे हो। हाँ, तो मेरे को ना अब दोनों में कोई, मेरी जो आंखें देखती हैं जो इतने सालों के बाद, तो मेरे को मतलब 1-2% का अंतर है, मैं मानता हूँ, बट उस तरह का अंतर नहीं। जो चीज बट कहते हैं ना आपका कि इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे एक लेमन लैंग्वेज में पूछूं, बहुत सिंपल भाषा में, लोगों को क्या आप फिल्टर रिकमेंड करोगे या नहीं करोगे, यस या नो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं करूंगा मैं तो। मैं तो कहता हूँ कि फिल्टर यूज है, जब आपके पास हुड लगा हुआ है, आप कपड़ा रखिए, साफ करिए उसको जरूरत से ज्यादा, और क्या। आप जब यूज कर रहे हैं तो धूल धक्कड़ तो उससे पड़ेगा ही पड़ेगा, तो आप उसको कंटिन्यूसली जो है ना, ऐसा जो सॉफ्ट आता है कपड़ा से साफ करते रहिए। फिल्टर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, एक्चुअली आप जो है आलस जो चीजें थे, मनुष्य के जीवन का एक हिस्सा है। अब एक चीज सर, और आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बीच में रोक रहा हूँ, कुछ नए व्यूवर्स हैं, आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट कहा कि साफ करिए, आई एग्री, बट साफ कैसे करें उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा बैग रखा हुआ है, ये किट है सर मेरा छोटा सा, अच्छा, जिसमें आपको साफ करने के लिए ब्लोअर मिलता है नॉर्मल सा, आपका एक लेंस क्लीनिंग सॉल्यूशन होता है जिसको मैं यूज नहीं करता, मैं इस बात पे आऊंगा क्यों नहीं करता, राइट? जी, कुछ नॉर्मल आपके ये कॉटन के स्वैप्स हैं, ये देखिए इस तरह से, इन्हें भी मैं यूज नहीं करता। और इसके अलावा जो नॉर्मल है आप देख सकते हो, ये कुछ कपड़े वगैरह रखे हुए हैं मैंने यहाँ पे, बट इस सब सामान को मैं यूज अब नहीं करता, ठीक है सर। इसका एक रीजन बताता हूँ कि क्यों। अगर मैंने कपड़ा लेके रगड़ा साफ करने के लिए या किसी भी चीज से बार बार रबिंग करी, तो स्क्रैचेस आने के चांसेस ज्यादा है। फिर चाहे वो कांच हो या कुछ भी हो, आपके स्पेक्टिकल्स के ऊपर जो चश्मा पहनते हो उसमें भी आप देखोगे कुछ सालों में स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो वही प्रॉब्लम अपने लेंस के साथ होगी। इसकी कोटिंग अच्छी है, क्वालिटी ग्लास का ज्यादा अच्छा है, तो थोड़ी देर से होगी, बट प्रॉब्लम होगी। अगर हरप्रीत जी ये बात सुन रहे हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सर। तो एब्सोल्युटली, हम लोग एब्सोल्युटली, क्या I'm करते listening, हैं कि listening. जब भी हाँ लेंस जी, क्लीनिंग करना हो ना, तो क्लीनिंग करने के लिए आप कपड़ा मत रगड़ें, आई रिपीट, कपड़ा ना रगड़ें। ब्लोवर से आप ऐसे हवा मार के पहले थोड़ा सा डस्ट को निकालें, डस्ट ही जी, स्क्रैच मारेगी उसके ऊपर। राइट, राइट, उसके जी, बाद अगर आपको थोड़ा सा लगता है
निकॉन कंपनी हमें एक चीज और देती है, मैं प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं कर रहा, बट ये मैं आपको एक ओरिजिनल चीज बता रहा हूँ, ये फ्रंट कैमरा ऑन है इसलिए उल्टा दिखेगा, अदरवाइज ये निकॉन का लेंस पेन है। ओके, सही बात। तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज है जिसमें कि अगर आपका हाथ लग जाए या कुछ हो जाए, ये इंस्टेंटली उसको साफ कर देता है, राइट। अच्छा। तो इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये ड्राई है। इस तरह का माल सामान जो है वो मार्केट में मिलता है, उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता कि वो स्क्रैच मारेगा या नहीं मारेगा। 90% चांसेस है वो भी स्क्रैच नहीं मारेगा, बनाया है कंपनी, डिजाइन करता है, बट ये ओरिजिनल प्रोडक्ट मुझे थोड़ा ट्रस्ट था तो मैंने ले लिया अपने लिए सर। दिस इज फ्रॉम निकॉन ओनली, राइट। इसका एक यूट्यूब वगैरह पे मैंने वीडियो भी डाला हुआ है, वो आपको मैं शेयर अलग से कर दूंगा। तो जी जी। कहानी ये थी सर, जब साफ करने की बात कही तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा जो नए यूजर्स हैं, पुराने हैं, ब्लोवर यूज करें डस्ट हटाने के लिए, राइट। एंड जो कपड़ा है वो फ्लैनल का है या जो भी कुछ है आपके पास सोल्यूशन, या ब्रश हो इस तरह का। तो ये पेन जब मैंने बात करी तो इसमें ब्रश है, ये देखिए ये ब्रश बाहर आ जाता है बटन दबा के। तो ये माइक्रो ब्रश होते हैं जिससे स्क्रैचेस नहीं आते, राइट। तो इस तरह का किट भी मार्केट में मिलता है, तो क्लीनिंग किट रखें सर, मेरी आपसे गुजारिश है। रिक्वेस्ट ये रहेगी, ज्यादा महंगा नहीं आता। मैंने हरप्रीत जी को भी लेंस क्लीनिंग किट, जहां तक मुझे ध्यान है, मैंने दिलवाया था जी फर्स्ट प्रायोरिटी, जी जी, बिल्कुल है ना बिल्कुल सर। बिल्कुल। ये इसीलिए दिलवाया था सर, ताकि लेंस गंदा तो होगा, देखो बाहर निकालोगे कबर्ड से या गाड़ी से तो लेंस गंदा होना है पक्का। जी तो हाउ टू जी क्लीन द लेंस बिना स्क्रैच, क्योंकि इक्विपमेंट एक्सपेंसिव है, थोड़ा मेंटेन रखना है, इमेज अच्छी आनी चाहिए, शार्पनेस आनी चाहिए। तो उसके लिए हमने ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए किट, मैंने इनको क्लीनिंग किट दिलवा दी। आप भी सर क्लीनिंग किट यूज करो, कपड़ा जी। लेके मत रगड़ो, फ्लैनल वाला यूज करो या कुछ है, थोड़ा सा अच्छा होता है, राइट सर। नहीं नहीं, उन्होंने फ्लैनल, दिया, निकन वाले ही दिया था, कुछ स्वैप दिया हाँ। है। तो एक इसके भी दो तरीके की चीजें आती है सर, एक लिंट क्लॉथ आता है जिसमें लिंट निकलता है, रेशे निकलेंगे। हम्म। एक जी आता जी। है एंटी लिंट जिसमें रेशे नहीं निकलते। तो हमें रेशे हम्म। नहीं निकलने वाला चाहिए, राइट। अगर हम्म। आप इस तरह का कॉटन स्वैब यूज करोगे, जो ये अक्सर लोग कान साफ करने के लिए यूज करते हैं, मैंने भी नहीं लिया नहीं, था, ऐसा ये बिल्कुल नहीं यूज करना है। इसमें से कॉटन के रेशे निकलते हैं, मेरे 5600 के अंदर रेशा जाके फंस गया था, वो परमानेंट रहा जब तक मैंने अच्छा। सर्विस नहीं कराई, है ना सर। तो ये तो बिल्कुल हम्म। नो, कॉटन के लिए तो मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, वीडियो के ऊपर लाइव कह रहा हूँ, नो मतलब नो, दैट्स बड़े अ वाले ग्रेट अक्षरों पीस में, ऑफ इंफॉर्मेशन, है बिकॉज ना अभी सर। भी अगर तो आप शॉप्स में कॉटन जाओ का चंडीगढ़ की। रुमाल है, हाँ, कॉटन स्वैब्स हैं, या किसी भी तरह का टॉवल है, इस तरह का मटेरियल यूज हम्म। नहीं करना है। उसका रेशा निकलेगा, हम्म। बॉडी में या लेंस में जाके फंस जाएगा, व्यू फाइंडर में प्रॉब्लम आएगी, एंड देन यू आर इन ट्रबल। तो सही वो बात। परमानेंट रहता है, फिर वो जब सर्विस सेंटर जाएगा सर तभी क्लीन होता है। तो हर पे जी ध्यान देना है कि कॉटन यूज नहीं करना है कभी भी, नहीं नहीं, वही कह लिंट रहा हूँ, फ्री। बहुत अच्छी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है ये। क्योंकि सर, अगर हम चंडीगढ़ की शॉप्स में भी जाएं, जो शोरूम्स हैं, वहां पे भी जब क्लिनिक किट मिलती है साथ में ये भी पड़े होते हैं। और जो सर अच्छा। जैसे बिल्कुल सही आपने बात। बताया, अगर मेरे जैसे एक बिगनर को, या एक जो अभी उस फेज में है, एक अच्छा इक्विपमेंट हम्म। अभी यूज करने की प्रॉपर, तो आप मतलब, रिस्क ले सकते हाँ हो, मतलब तो आप डैमेज इंटेंशनली कर पाओ, अनइंटेंशनली शायद डैमेज कॉज कर दो, हाँ, तो पता अब ना हो नहीं करूंगा इस क्योंकि चक्कर अब में। पता चल गया, अब नहीं करूंगा, लेकिन दैट्स अ गुड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड दूसरा सर हरप्रीत जी, एक बात और कहूंगा, लेंस क्लीनिंग सोल्यूशन अवॉइड करें। जी हमें नहीं पता कि इसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल अच्छा माना जाता है, बट मैं स्टिल कहता हूं कि आइसोप्रोपाइल या कोई सा भी अल्कोहल लोगो प्लास्टिक पार्ट को डिसॉल्व करेगा। यस, वो तो आइसोप्रोपाइल अफेक्ट को करेगा। हटा दो तो यस अलग बात है। तो यस। प्लास्टिक प्लास्टिक के साथ जो अल्कोहल है उसका मिलन थोड़ा ठीक नहीं है, राइट। तो वो डिसॉल्व करता है, आपके लेंस के ऊपर कोटिंग होती है, उसको डैमेज करने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यस तो हमें कोटिंग भी संभाल के रखनी है ताकि ग्लेयर नहीं आए, नहीं तो आपके कलर वलर सब बिगड़ जाएंगे, लेंस ग्लेयर आना शुरू हो जाता है। तो यस। ये दो तीन चीजें की, अच्छा। राइट सर। तो सर आप भी, जतिंद्र सर, आप भी ध्यान रखिएगा कि ये ना करें। जी। क्लीनिंग सोल्यूशन मैं अवॉइड हम्म। करता हूँ पर्सनल, हम्म। मेरा मानना हम्म। है। आप लोग का अलग चॉइस हो सकता है, लोगों का अलग विचार हो सकता है, मेरा पर्सनल विचार है कि क्लीनिंग सॉल्यूशंस में लिक्विड क्लीनिंग नहीं यूज करनी है लेंस के अच्छा। ऊपर, क्योंकि हम्म। मट्टी वट्टी होती है वो सब रगड़ खाएगी, स्क्रैच आएगा। तो एक तरह से जैसे गाड़ी के ऊपर आप देखेंगे, नई कार होती है और पुरानी सही कार बात में है। डिफरेंस ये है कि कपड़ा रगड़ते रहते हैं गीला कर करके, तो वो माइक्रो स्क्रैचेस आ जाते हैं, राइट। तो वो लेंस पे भी आ जाएगा सर, माइक्रो स्क्रैच, खत्म हो जाएगा सारा केस, राइट। तो वो चीज को सर थोड़ा सा अवॉइड करना है। वापस आते हैं सर, हम्म। आप अपना कुछ बात कर रहे थे, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, मेरा तो लंबा चौड़ा टॉपिक है सर, चलते रहते हैं कैमरा को लेके, हाँ, बताएं। वो मैं वही पे
वापस आ रहा था मैं, फिर मैंने जो आज वॉच किया, जो भी मैं स्टेशन पे गया अपना, इंडिविजुअल था, अकेला था, एक्सपेरिमेंटल कह लें जो भी है, ये मेरा चलता रहता है एक्सपेरिमेंट, है ना। तो उसमें मैंने यही परसेप्टिबल जो डिफरेंस जो देखा, तो हर किसी को मैं तो फोर्स नहीं कर सकता ना कि आप जो है कैलिब्रेशन की ओर जाओ या ना जाओ, क्योंकि जैसे आपने मुझे कहा, मैंने एक्सेप्ट किया। यदि मैं अगले को कहता हूँ, हो सकता है वो कहेगा कि भाई ये ज्यादा टेक्नोलॉजी के जानकार है, हाँ, वो मतलब उसी में वो खुश अगले है। की अपनी विचारधारा है। हाँ, वो कहेगा कि मतलब वो उसी में खुश है बंदा। जैसे लेकिन मेरे एक मित्र आप हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, तो वो भी 5600 और 200 500, तो मैंने अभी फिलहाल कल की बात है, मैंने बात करी थी उनसे। सर हाँ हाँ। मैं उनको अपनी जो है सारी जो है ये सब बताया ऐसे वैसे। वो कहते हैं कि मेरे सोच के अनुसार फिर तो सब ठीक है मेरा। तो फिर आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। बट पर ये तो आपकी खुद अपनी परसेप्शन होनी चाहिए कि मैं क्या आउटपुट दे रहा हूँ, मेरा कैमरा क्या आउटपुट दे रहा है बिल्कुल सही है बात ना। है सर। हम्म। तो मेरे हिसाब से 50% मैं उस ओर सपोर्ट करता हूँ कि आप लेंस स्टेबलाइजेशन जो है, देखो वो करें। निकन की आप एएमसी लोगे, जब भी लोगे आप एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, या आपके पास हो सकता है वारंटी हो, यदि आप डिटेल में पढ़ेंगे कभी इसको, मैं डिटेल में गया था, तो उसमें ना एक शब्द आता है लेंस स्टेबलाइजेशन, जो है साल में एक बार आपकी करी जाएगी। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसमें कोई कैमरा साल में मेंटेनेंस एक बार किया करनी है। चाहिए, ऐसा जी माना जी। था। तो जब उन्होंने कोई कैमरा और लेंस तो थोड़ा ही मेंशन किया हुआ है उसमें, तो निकन कह रहा है, तो उनके तरफ से कुछ तो है ऐसा टेक्निकल इशू, तभी तो उन्होंने कहा होगा। एग्जैक्टली। नहीं तो वो क्यों आपके पास कहेंगे। कैमरा पुराना है, लेंस आपने नया खरीद लिया। सर जी आप एक खुद सोचो, ह्यूमन बॉडी है, तो यदि लीवर ट्रांसप्लांट करा रहे हो तो उसके लिए भी तो पेयरिंग जरूरी है बॉडी के साथ उसकी। एग्जैक्टली। मेरी जो सोच है, लेमैन की तरह मैं बिल्कुल सोच रहा हूँ। तो मैं गुड़गामा गया था, संजोग की बात है, मुझे सफलता हाथ हाथ लगी, मैं बट सेटिस्फाइड हूँ। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा, आप ये बताना चाह रहे हैं बिल्कुल सर, कैलिब्रेशन। मैं तो धन्यवाद करता हूँ अभिनव पुनिया जी को, जिन्होंने इस शब्द का यूज किया था। और बिल्कुल मतलब एक मतलब आपने हो सकता है जाने अनजाने में कह दी ये शब्द, बट नहीं, ये जान के कहा गया कारगर था हो सर, गया। क्योंकि आपके प्रॉब्लम के मुझे 3-4 सोल्यूशन ही लग रहे थे। मैंने कहा ये प्रॉब्लम हो सकती है, एंड उसमें से यही फिर फाइनल निकला कि लेंस कैलिब्रेशन वाज द आंसर, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दो चीजें थी, एक तो ये भी था और दूसरा था जो आपने वो फिल्टर वगैरह का कहा था, तो उसकी भी एक्सपेरिमेंट कर ली मैंने, तो बिल्कुल सहमत हूँ आपसे इस चीज के लिए। तो दोनों केसेस में आउटपुट आपको ये ठीक में लगा कि फिल्टर भी नहीं लगाया आपने तो ज्यादा अच्छा आउटपुट आया, और लेंस कैलिब्रेशन और अच्छा आउटपुट आया। जी तो ये था। तो अभी ये था कि हरप्रीत जी यहाँ पे मेरे साथ जो लाइव सुन रहे हैं, इनको कुछ लोगों ने कहा था कि आप फिल्टर ले लीजिए। जी अच्छा। तो मेरा सर रिकमेंडेशन यही था हरप्रीत जी कि अगर हमें फिल्टर लेना है तो बहुत अच्छी कंपनी का और बहुत अच्छे क्वालिटी का लेना है। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा चीप क्वालिटी का फिल्टर यूज करेंगे, तो अभी 2 लोग आपके सामने यही बोल रहे हैं कि फिल्टर नहीं लगाना चाहिए, शार्पनेस बिल्कुल खत्म होती है इमेज की। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। ग्रेडियंट आते हैं, पीछे लाइनें बनना शुरू हो जाएंगी, कलर एब्रेशंस आने शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे टेक्निकल भाषा हो जाएगी, लेकिन द थिंग इज दैट कि आपको रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। कहीं पे टिंट आएगा, कहीं वो टेढ़ी तिरछी लाइनें आएंगी। आपको सर टेढ़ी तिरछी लाइनें आ रही थी फिल्टर पे? हेलो। जतिंदर सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ आप लाइन पे हैं? हाँ हाँ, मैं कह रहा एडी तेजी तो थी, वो तो जैसे क्या था कि फिल्टर के साथ ये था ना कि जो फोकस की भी प्रॉब्लम हो रही थी, हो रही थी। ओके। जो फिल्टर हटा के मैं इंस्टेंटली किसी चीज को चाह रहा हूँ फोकस कर ले, क्योंकि वो कब चला जाएगा फोकस से बाहर मुझे नहीं पता, स्टैटिक तो है नहीं। तो अब वो मेरे साथ वो प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही मैं वहाँ पे व्यू करता हूँ, वहाँ पे वो फोकस में अब मतलब 50% का मैं देख रहा हूँ, मेरी अपनी है जो समझ एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट, तो मैं 50% डिफरेंस देख रहा हूँ, जो आज मैंने देखा कल देखा।
फिल्टर में मुझे वो थोड़ी सी ना फोकस के लिए थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल तेज नहीं है फोकस के लिए, बट अंतर तो दिख गया, अंतर तो दिखा। अंतर तो दिखेगा सर, है ना। हम्म सो मेरा भी यही मानना था कि जितना बड़ा लेंस लेंगे और जितना ज्यादा हम फोकल लेंथ यूज करेंगे, अंतर दिखेगा फिल्टर लगाते ही। तो शार्पनेस है, हम्म क्लैरिटी भी, ग्लास के ऊपर एक ग्लास एलिमेंट और लगा देना मतलब हमने कहीं ना कहीं लाइट को रोका है सेंसर में जाने से, ऐसा मेरा मानना है, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कैमरा की। मैं गलत हो सकता हूँ। और जितनी कम लाइट जाएगी सर, उतना ही मतलब फोटोग्राफी को तो डेफिनेशन ही यही कहता है कि है ना, कितनी लाइट आप कैप्चर कर सकते हो सेंसर के ऊपर। उस सेंसर को लाने हम्म का जो माध्यम मीन्स मोड है वो है आपका लेंस। तो जब उस लेंस पे ही हम लाइट नहीं ला पा रहे हैं सेंसर पे लाके लेंस के थ्रू, तो वो दिक्कत हमें आनी है फोटो के लगे, राइट। तो इसी तरीके से कैमरास काम करते हैं, आगे भी इसी तरीके से करते रहेंगे। मुझे नहीं पता टेक्नोलॉजी अब एआई वीआई पे आ जाए तो बात अलग है। तो सॉफ्टवेयर से भी आजकल काम काफी कुछ हो रहा है, तो वो भी एनहांसमेंट एआई काम कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी तो सर चेंज नहीं होने वाला, चाहे कोई सा भी कैमरा हो, किसी भी कंपनी का कैमरा हो। सो अब ये था सर कि जब निकॉन में जैसे आप गए थे, आपने एक्सपीरियंस किया था, एएमसी भी जी आपने ली, तो हम्म आपका कहना ये है कि एएमसी सबको लेनी चाहिए? एएमसी, सॉरी, एएमसी लेनी चाहिए सबको? नहीं नहीं, आपका जब वारंटी में है तो एएमसी की तो जरूरत ही नहीं है उसमें। लेकिन वारंटी के बाद अगर हम जाते हैं, तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैंने एएमसी नहीं ले रखी सर, ऑनेस्टली बताऊंगा। सो हाँ हाँ, उसमें ये है जैसे कि एक बार आप जाते हैं, अपना जो है प्रॉब्लम बताएंगे आप, तो उसकी कॉस्टिंग आती है, एग्जैक्टली। और जो एएमसी की कॉस्टिंग है उसमें मार्जिनल डिफरेंस, आप कितना मार्जिनल। बचा लोगे? हाँ सही बात है। हजार, तो कल को कोई हजार प्रॉब्लम है, 1500। समथिंग आए तो मतलब एएमसी हम्म, स्टिल अ बेटर ऑप्शन। आप एक बताना चाह रहे हैं कि भगवान ना करे किसी को प्रॉब्लम आए, बट अगर आ जाए तो एएमसी इज अ बेटर ऑप्शन टू टेक केयर फॉर द हाँ, कैमरा। ये मैं उनको सजेस्ट करता हूँ, जैसे कि पुनिया जी, जैसे कि जैसे आप हैं या मतलब रेगुलर यूजर हैं, मैं उनके रेगुलर लिए यूजर हूँ। है मतलब, हाँ, मतलब हर वीकेंड पे निकल गए या मतलब रेगुलर यूज हाँ कर रहे मतलब हैं हर कि सैटरडे संडे मतलब। सर कहीं ना कहीं भारी होते हैं, हम्म और कैमरा किन हम्म, हालातों में चलता है वो आप भी तो जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अब उनके लिए तो नहीं है, मतलब मैं कहूँगा कि जो महीने में एक बार यूज कर रहे हैं या 2 महीने हाँ में नहीं, यूज कर वो रहे तो हैं, फिर उनके लिए तो सर, कोई। वो तो फिर जब हाँ कैमरा ही नहीं निकाल रहे तो फिर अब हमारा तो ये दिन रात ही चलता है, आगे पीछे चलता ही रहता है, हाँ, ये कहीं तो रुकता हम ही नहीं है। जैसे लोगों के लिए, अब जैसे मेरे को पूछोगे आप, तो मेरे हम्म अंदर जो खुजली होती है कि मैं डेली यूज कर लूँ, चाहे कहीं हम्म खींच लूँ, पत्तियों की भी खींच लूँ भाई, थोड़ी सी मतलब हम्म आत्मा में संतोष आ जाती है। मतलब जो सच वो भी है बात सर। है। अब नेचर से जुड़े हुए हैं, नेचर का काम करते हैं, फोटोग्राफी का शौक है, हाँ तो सर वो तो कुछ भी हो सकता है ना। हाँ जी, तो तो अब मेरे लिए तो वो चीज ऑप्शन अच्छी लगी थी, हाँ नहीं, क्योंकि बढ़िया अब है मैं सर, बढ़िया। इसमें उसमें जाएंगे आप तो ये मैं आपको भेज दूंगा उसका स्नैप। तो उसमें है कि 3 बार सर्विसिंग भी है, कैलिब्रेशन साल में आप 2 बार हाँ करवा अच्छा है सकते हो। आई नो। मतलब जो कंपनीज आपको प्रोडक्ट दे रही हैं तो वो सपोर्ट भी पूरा करते हैं आपको, ऐसा नहीं है कि बस प्रोडक्ट दे दिया और वो भूल गए, राइट। जी, तो और और वो कोई सा डीप भी ब्रांड क्लीनिंग। लीजिए, सारे के सारे ब्रांड्स, मैंने किसी का भी कोई कंप्लेंट नहीं सुना अभी तक कि सपोर्ट या आफ्टर सर्विस में एटलीस्ट कैमरा मैन्युफैक्चरर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी, सो सारे ही ब्रांड्स अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, हमें पसंद है, अप्रिशिएट करते हैं कि इस तरह का वो लोग ध्यान रखते हैं चीजों का। थोड़े से जरूर प्लस माइनस है कि भैया गुड़गांव जाना पड़ता है, लेंस चंडीगढ़ में नहीं होता, हाँ वो भी ये वहीं चीज है। भेजेंगे। ये छोटा चंडीगढ़ सा है, वाले से अब बहुत बड़ा इशू थोड़ी नहीं सी है, बट मैं कुछ छोटा सा बोलूंगा इशू है। अगर हल्की यहाँ हो जाए शिकायत तो है। थोड़ा जल्दी हो जाएगा, नहीं तो वहां जाना आना 1 आध 2 दिन लगता है, एंड वो रहता है ना सर। तो एक बार जी आप जी, ट्राई जरूर करना सर। अब मेरा एक क्वेश्चन और आ रहा है, जो व्यूअर्स हैं यहाँ पे जब वो वीडियो देखेंगे उनके माइंड में भी आएगा। आपने लेंस का कैलिब्रेशन करा लिया अपने जी बॉडी के हिसाब से, अपने कैमरा बॉडी के जी, हिसाब से, हम्म। क्या आपका लेंस मेरे कैमरा बॉडी पे शार्प चलेगा? ये प्रश्न मैंने उनको भेजा हुआ है, जैसे हमारी जो आपने ये प्रश्न इस किया था प्रश्न का मुझे। आंसर सर अभी मेरे पास फिलहाल नहीं है, लेकिन मुझे हम्म, लगता है कि 99.9% आंसर आएगा कि मेरे बॉडी पे भी आपका लेंस शार्प चलना चाहिए, हाँ, ये राइट। क्योंकि ऐसा मैं मेरा बता मानना रहा है, हूँ, अजम्पशन है। जो वहाँ के हेड थे, झा करके हम्म हैं, हम्म हम्म मिस्टर झा करके हैं, जो हम्म मेरे से भी इंटरेक्शन हुई,
क्योंकि मैं जाके वहां ना, बिल्कुल आप कहोगे कि मैं चला गया लेके चला गया, ऐसा कुछ नहीं था। मैं बिल्कुल गया और मैंने बजाबता उनसे कहा कि भाई ऐसा है, मुझे उस टेक्निकल बंदे से मिलना है जो आपका हेड है। तो मिस्टर झा करके थे, तो उनको एक प्रश्न मैंने भेजा है, जो कल बात हुई थी हमारी, तो उनको भेजा है। अभी उनका आंसर आया नहीं है, तो इसलिए मैं आपको आ बता नहीं जाएगा पाऊंगा सर, आ इसका। जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। तो 99.9% मुझे लगता है ऐसा है, बट अगर 0.1% का डाउट है तो वीकेंड पे कभी ना कभी हम मिल ही लेंगे, सैटरडे संडे को, जी जी। तब चेक कर लेंगे। अगर ऐसा कुछ लगता है मैं अपना लेंस आपको दे दूंगा, आप एक बार देके देखना, तो लेट्स ट्राई कि क्या होता है। और एक आपका प्रॉब्लम लेंस यहाँ तो पे, वो है, आपका लेंस तो पहले ही इंटरनेशनल है। वो तो किसी कैमरे पे चलेगा। इंटरनेशनल क्यों बोला आपने, मुझे ये समझाओ, ये क्योंकि वो टर्म यूज टेक्निकली किया है। अंदर फिट किया होगा। टेक्निकली जो है वो पहले ही, वो किसके हाथ में है उसको पता है। वो तो है, जिसके हाथ में हाँ लेंसेस उसे पूरा इन एंड आउट ए टू जेड पता है कैमरे का, ये तो गारंटी के साथ जी। ना। बट रिलेटेड टू नेचर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड फोटोग्राफी, अगर कोई कहता है भैया अच्छा पोर्ट्रेट खींच दो, तो आज भी धुएं निकल जाते हैं, नहीं खींच पाता क्योंकि एंगल नहीं है इतना अच्छा। बट अगर कोई हम्म। कहता है मैं काम चलाऊ से थोड़ा बेटर, मोबाइल से तो बहुत अच्छी फोटो, काम चलाऊ से थोड़ा बेटर एंड प्रोफेशनल से थोड़ा नीचे है, मैं ये अपने आप को रेट करूंगा इन टर्म्स ऑफ जी जी। फोटोग्राफी। अदरवाइज जो प्रोफेशनली काम अच्छा कर रहे हैं सर, उनका फिर लेंसेज भी अच्छे हैं, कैमराज भी अच्छे हैं। प्राइम वो लेंस तो का तो सही। देखो मुकाबला हम कर नहीं सकते, है ना। जो नॉर्मल लेंस है तो हम्म, वो तो रिजल्ट आएगा नहीं जो प्राइम लेंस वाला आता है। बट जो क्वालिटी है उसके हिसाब से हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये बोलना चाहूंगा। जी सो लेट्स सी सर, देखिए क्या क्या होता है। एंड एक चीज और आप लोगों से रिक्वेस्ट है सर, कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो लाइव सेशन आ जाए करो, हो सकता है जनता आंसर दे दे, हो सकता है हमें कुछ सीखने को मिल जाए। वीडियो बनाने चाहिए, मैं तो कहता हूँ खूब वीडियो बनाओ सर, दिन के 50 वीडियो बनाओ हम्म, इस प्रॉब्लम के ऊपर। तो जितना ज्यादा हम्म, हम कंटेंट लोगों को शेयर करेंगे, अवेयरनेस करेंगे सर, हो सकता है कोई मतलब सोल्यूशन निकाल दे, किसी और को शार्पनिंग की प्रॉब्लम आ रही हो या कुछ हो। तो आज आपने बातों ही हम्म, बातों में आंसर दे दिया कि लेंस कैलिब्रेशन इज द आंसर। और बातों ही बातों में हमने ये पता लगाया कि फिल्टर हटा लो, लेंस कैलिब्रेशन करा लो, आपकी इमेज बिल्कुल शार्प। बिल्कुल। हम्म, जिन लोगों के पास, अब मैं देखता हूँ अगर मेरा कैमरा चेंज शायद हो सकता है, एक चीज और है सर, हो गया। तो जिन लोगों के पास D500 या इस तरह की बॉडीज हैं, इनमें एक चीज और आती है जो सर हम्म। आपके बॉडी में नहीं है, कैमरा बॉडी के अंदर। तो अभी आप अगर मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये देखिए, आप देख पा रहे हैं मेरा स्क्रीन। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पे एक चीज होती है विच इज कॉल्ड सेटअप मेनू के अंदर AF फाइन ट्यून। अच्छा। तो ये सिस्टम बहुत मशीन्स के अंदर नहीं है सर। हम्म, ओके, सो ये क्या काम करता है, जैसे डिफॉल्ट ये देखो, ये इसको करेगा +20 चाहिए कि -20 चाहिए। सो अगर थोड़ा बहुत लेंस में +-20 का रेंज का है, तो थोड़ा सा बैक फोकस है, ऊपर फोकस कर रहा है, ज्यादा फोकस कर रहा है, तो मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ इसको ऐसे। अच्छा। तो ये फीचर जो है वो सर थोड़े से एडवांस्ड बॉडीज के अंदर आता है। ये दिस इज सेटअप में जाके AF फाइन ट्यून। तो अगर लेंस में थोड़ा सा 19-20 का अंतर है, जरा सा, तो उसको हम्म, बॉडी भी, मेरा मानना ये है कि हैंडल अपने आप कर लेती है। जबकि यही हम बात करें अगर D5600 जैसे मशीन में, तो उसमें ये फीचर आपको नहीं दिखाई देगा। नहीं है। तो बेसिकली क्या है सर कि कैमरा देखो, अगर सारे फीचर एक ही मशीन में आ जाएं तो फिर एडवांस वाले की जरूरत क्या है। सही बात है। तो कंपनी को बेचना सारा ही सामान है, लोगों की जरूरत भी, प्राइस भी कम रखनी है कि हर कोई तो महंगा कैमरा लेगा नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे हम्म। मुझे कोई फीचर नजर नहीं आता इस तरह का, है ना। यही फीचर है सर सारे आपके पास। हाँ जी हाँ जी। तो ये एक छोटा सा ड्रॉबैक था। बट जैसे मैंने ये 18-140 पे लगा रखा है। हाँ, एक रिक्वेस्ट और सर, बार बार हम्म, लेंसेज निकालना बंद कर दो। हम्म, अगर आप मेरी तरह रेगुलर फोटोग्राफी का शौक रखते हैं, रेगुलर फोटोग्राफी करते हैं, वीडियो बनाते हैं, फोटो करते हैं, सारा काम करते हैं, तो दो बॉडीज रखिए जैसे मैंने रखी हुई है। एक D500 है हम्म। जो 200-500 पे लगा हुआ है, इसको कभी नहीं निकालता, कम ही निकालता हूँ। और एक 5600 है जो 18 पे लगा हुआ है। सो अगर 18 से हम्म, 140 18140 का रेंज खींचना है तो मैं ये बॉडी यूज करूंगा, और 200-500 में जाना है तो मैं ये लेके चलूंगा। बट हम्म। मैं लेंस इंटरचेंज नहीं करूंगा, राइट सर।
रीजन क्या है इसका, जो अभी मैंने बात बताई आपको, रीजन ये है हाँ सर जी। इसका कि वही आप वाली बात थी कि लेंस के माउंट के अंदर जो है वो गैप नहीं आना चाहिए। अगर गैप आ गया तो फिर माउंट भी चेंज हो सकता है, फिर से लेंस कैलिब्रेट हो सकता है और थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, शार्पनेस खो सकता है लेंस अपनी। गैप आ जाएगा डिस्टेंस लेंस सेंसर के और लेंस के बीच में, तो फिर वो पक्का इमेज आपकी बेकार होगी। तो उस चीज को रोकने के लिए मेरा ये गुजारिश थी, अगर कर सकते हैं, पॉसिबल है तो, कुछ लोगों के लिए होगा, तो आप 2 बॉडीज रखें। तो जब आप भी, दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ अपग्रेड करें, जल्दी करें। भाभी जी ये वीडियो देखेंगे तो बहुत बिल्कुल मारेंगी, बिल्कुल। ठीक है। तो वो आप समझ गए क्यों। बट जब आप अपग्रेड करें तो पुराना लेंस, पुराना पुराना कैमरा ना बेचे, उसमें छोटा लेंस लगा लो। तो अगर जी। आपको चाहिए कि स्मॉल फोकल लेंथ पे यूज करना है या वीडियो बनाना है, इंडोर करना है, सो आप छोटा लेंस लगाएं, छोटा कैमरा के साथ। एंड जब बड़ा लेंस चाहिए तो ऑफ कोर्स हमारे पास एक ऑप्शन है, ठीक है सर। सो उम्मीद करता हूं कि अब कुछ और अच्छे शॉट हमें आपकी तरफ से देखने को मिलेंगे। अभी तो वैसे ही बहुत अच्छे शॉट मिलते हैं। एंड बाकी प्यार मोहब्बत चलता रहता है सर फेसबुक पे एंड सही व्हाट्सएप बात पे, है। ठीक है। सही तो बात। दुआएं दुआएं चलती रहेंगी, कमेंट बाजी चलती रहेगी। अब एक सेकेंड, नीचे कमेंट आया जितेश्वर जी का, निकॉन चार्जेस 7,000 रुपीज टू प्रोवाइड लेंस प्लस कैमरा इन केस दे कैलिब्रेट द लेंस बॉडी कॉम्बो। 7,000 रुपए चार्ज करने की बात करी है। ओके, आपका अब ये थोड़ा सा हो सकता है सर कि एरिया टू एरिया डिफर करे। सर आपसे कितना चार्ज किया गया था? इनका तो 7,000 का कोटेशन आया। बिल्कुल ये सही कर रहे हैं, बट एएमसी सही कह एक रहे हैं। साल में ये सारा कुछ इंक्लूड है, वन टाइम का ये चार्ज बताया हमको। तो एएमसी के अंदर वन टाइम का 7,000 पे करो और आपको एएमसी मिल जाती है। तो ये आपने कहा। एएमसी में तो 2 मैं बार कर चेक, सकते हैं आप। हाँ तो मैं चेक जरूर करूंगा सर कि एएमसी का क्या फीचर्स हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। अगर लगता है तो लेना चाहिए। एंड अगर एक चीज मेरी थोड़ी सी और रिक्वेस्ट थी कि अगर कुछ लोग जो इंश्योरेंस सेक्टर में हैं और अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भाई प्लीज हेल्प कर दो। कैमरा इंश्योर कैसे होता है, लेंस इंश्योर कैसे होता है, सवाल का जवाब नहीं मिला। नया हो जाता है, पुराना तो बिल्कुल भी नहीं होता। मेरे ख्याल से कोई करेगा भी नहीं, ऐसा मेरा मानना है। तो लेट्स सी सर, गैजेट इंश्योरेंस भी मैं थोड़ा देख रहा हूँ, अगर कुछ हो जाता है, नहीं किसी से समझ आता तो मैं ही करना स्टार्ट करता हूँ। तो आई डू नहीं, समथिंग, उसमें कुछ करूंगा। जहाँ तक मुझे पता है कि उसमें हम्म टेक्निकल ब्रेकडाउन की नहीं होती इंश्योरेंस, हम्म थेफ्ट की हम्म, हम्म, होती है, खो जाने की हम्म। होती है, वो सर ब्रेकडाउन की नहीं छोटे होती। मोटे की होती है, लेकिन कैमरास की मैंने थोड़ी कमी देखी है। अगर आपकी नजर में कुछ हो तो जरूर लोगों को बताइएगा कमेंट में, या मुझे फोन करके, या जैसे भी आप बताएं। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें शायद जरूरत पड़ सकती है लोगों को, ठीक है सर। तो चलिए सर, अच्छा सेशन रहा, काफी हमने बातचीत करी, कुछ सीखा सिखाया, ज्ञान शेयर हुआ, एक्सपीरियंस बटा। लोगों के कमेंट भी आए, जीवा बॉस को थैंक्स लॉट। एंड काफी लोगों ने देखा करा। तो इसी तरह से सर नॉलेजेबल सेशन आगे भी करते रहेंगे। कभी आप भी हमें बुला लो लाइव, कभी हम आपको लाइव बुला लेंगे, चलता रहेगा काम, है ना सर। तो मिलते एक हैं किसी सोच की वीकेंड पे सर। मैं तो धन्यवाद करूंगा जाने से पहले कि मतलब एक सोच की पॉजिटिव रिजल्ट आई। हो सकता था उसका निगेटिव भी आ सकता था, लेकिन सही दिशा ना में ना एक सर, टेक्निकल सोच की पॉजिटिव रिजल्ट आई। और आएगा बहुत सर, बहुत बिल्कुल धन्यवाद। आएगा। थैंक यू, थैंक यू। बस ये इससे जरूर था कि सबको आपको मतलब थोड़ा सबको लेंस अब फायदा हो। महंगा, थोड़ा लेंस आपको महंगा पड़ गया अब। तो नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ये ये जरूर होगा, लेकिन मैं अच्छा हो गया। मैं देखो इस चीज के लिए बिल्कुल मतलब इशू करते हैं, ऐसा सोचता हूँ ये नहीं होने। अल्टीमेट रिजल्ट मैं क्या पा रहा हूँ, सेटिस्फैक्शन। अल्टीमेट रिजल्ट सक्सेसफुल है आपका। बस तो सेटिस्फैक्शन डालना से सर, बड़ा तो है। अच्छे जरूर। फोटोज डालिए, खूब सारे डालिए, कुछ एक सब्जेक्ट को छोड़ के, जैसे कि नेस्टिंग। तो आप समझ गए हैं, अभी डाला कभी, उसके बाद डाला कभी। है ना। तो आप समझ गए हैं मेरा किस तरफ बात थी, है ना सर। हाँ। तो ग्रुप में मैंने 1 साल पहले भी अलाउ नहीं की थी, आज भी नहीं करूंगा, आगे भी कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं ना नहीं। हो। तो झगड़ा नहीं करना है किसी से, तो वही सब है। चलो सर, हैप्पी बर्थडे। लेंस वगैरह अच्छे से करें, गॉड धन्यवाद ब्लेस यू धन्यवाद। ऑल। अच्छी फोटोज डालिए, खूब सारे आपको बर्डिंग शॉट मिले, मैं तो ये दुआ करता हूँ। राइट सर। अरे एंड एक और बात, धन्यवाद। आते आते वक्त थोड़ा हाथ भर के लाइएगा। क्या एक चीज एक हाथ में आवाज? मिठाई और एक हाथ में कैमरा होगा ना अब। नहीं, वो लिट्टी चोखा ही होगा मेरे यहाँ पे।
है ना, एक हाथ में कुछ होगा मेरे खाने के लिए और एक हाथ में आपका लेंस होगा, तो इस पर हाँ। आप गाड़ी कैसे चलाओगे? दो हाथ चाहिए। कह रहा मैं तो थोड़ा लिट्टी चोखा हुआ था, लिट्टी चोखा हमारे यहाँ बहुत बढ़िया। ट्रेडिशनल डिश, डिश कहते हैं, तो स्टेपल एक डिश एक बार कहते तो हैं। मैं खा चुका हूँ, एक और बार इंतजार रहेगा सर। अब की बार जरूर 200-500 की जरूर खुशी है। ठीक है सर। जरूर सर। चलो सर, जरूर। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सर। थैंक यू।